پریز دی لارڈ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن اور آپ کا محبوب پروگرام پریز دی لارڈ. دوستو, اس پروگرام کے وسیلہ سے پوری دنیا کے لوگ برکت پاتے ہیں اور ہمیں جب گواہیاں ملتی ہیں تو ہمارے دل شادمان ہوتے ہیں کہ آپ کس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی شخص بھی عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک نہ ہو, بلکہ خدا کے کلام سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے روح کی رہنمائی میں چلے اور کلام کی روشنی میں ترقی کرے اور اس قد کے اندازہ کے مطابق گرو کرے جو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ پہنچے. اور یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کی کاوش ہے کہ آپ اس زندگی سے بھرے ہوئے ہوں جو کثرت کی زندگی ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے. اس لیے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے بھی ایک ہی پیغام ہے کہ اگر یسوع مسیح کو ابھی تک آپ نے نہیں جانا تو جان لیں اس کو, کیونکہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور شخص نہیں ہے جس کے وسیلہ سے آپ نجات پا سکیں. آسمان پر جانے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اور جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پاکستان کے اندر یہی خوشخبری پھیلا رہا ہے کہ یسوع مسیح ہی رستہ ہے اور نجات کا حقیقی رستہ وہی ہے. دوستو, آج میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت شخصیت موجود ہے. بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں. انٹرنیشنلی خداوند کے عظیم خادم ہیں, مشنری خدمت کرتے ہیں, رسولی خدمت ہے ان کے پاس, اپولوجیٹک ٹیچر بھی ہیں اور خداوند کے خادم ہیں. خداوند نے انہیں بڑی ڈیفرنٹ وے سے اپنے گھرانے میں شامل کر لیا اور اس خوبصورت جو بھیڑ ہے جو یسوع مسیح کی بھیڑ ہے اس میں شامل کر کے ان کو نجات دی اور ان کو تیار کیا کہ وہ کلیسیا کی ترقی کا باعث ہوں. سویڈن سے ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ خاص پروگرام جو ہے ترتیب کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ آج ان کی گفتگو سے برکت پائیں اور خدا کے کلام میں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بادشاہت ہے. بادشاہت کی وسعت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ خدا کے عظیم خادم موجود ہیں سویڈن سے, پاسٹر نوید ملک. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ان دی شو سر. ویلکم. Praise the Lord. Good to see you, sir. Thank you, sir. آپ کی شخصیت کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ سمیٹنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک مصنف بھی ہیں, آپ ٹیچر بھی ہیں, آپ پریچر بھی ہیں, آپ مشنری بھی ہیں. بہت ساری خدمتیں آپ کو خداوند نے دی ہیں. کیا فیل کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو جس طرح سے استعمال کر رہا ہے اس دنیا کے اندر؟ آپ 7 نیشنز میں جا چکے ہیں, بہت سارے لوگ علاقوں میں جا کے خدمت کر چکے ہیں. واٹ ڈو یو فیل کہ اب جو ہے اتنی میچورٹی کا لیول ہو گیا ہے, کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ روح القدس اور زیادہ آپ کو کثرت سے استعمال کرے؟ بھائی جی, سب سے پہلے تو خداوند کا اور اس کے بعد آپ کا ممنون ہوں کہ اس جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر اس پروگرام پریز دی لارڈ میں مجھے آپ نے مدعو کیا کہ آپ کے ساتھ ہم نشست ہو سکوں اور اپنی مسیحی قوم کے لیے بڑی اہم ترین باتوں پر تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کر سکوں. آمین. رہی بات جو آپ نے کی ہے, در حقیقت یہ سب کچھ جو کچھ آپ نے کہا اس کے پیچھے اور بھی کہکشائیں ہیں, لیکن میں تھوڑی دیر پہلے یہ بتا رہا تھا کہ تقریباً 36 برس ہو گئے مسیح خداوند کی تقلید کرتے ہوئے, لیکن آج بھی میں جب اپنے آپ میں ہو کر بیٹھتا ہوں اور اپنے آپ پر سوچتا ہوں تو مینو انج لگتا ہے کہ جے میں ہون بھی میں کچی پکی کلاس وچ پڑھدا جائے, کیونکہ بہت کچھ آگے ہے جو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ خداوند کی مرضی ہوئی تو میں کروں گا بھی. خداوند کی مرضی ہے, لیکن کب تک چراغ زیست جلتا رہے گا یہ خداوند کی مرضی ہے, اور تب تک میں اس کام میں ہماتن گوش رہوں گا. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں بھائی صاحب کہ خادم کی زندگی مکمل طور پر خداوند کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آمین. اور خدا خود ہی پلان کرتا ہے اس کے لیے, اور جب ہم سلو ہوتے ہیں تو دیٹ از آلسو گاڈز پلان. وین وی آر فاسٹ دیٹ از آلسو گاڈز پلان. اور ہر چیز خداوند اپنے وقت پر
ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے تاکہ ہم اس کو ایکسپلور کریں, اور چیلنجز بھی آتے ہیں, سب کچھ آتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر تو بہت سارے چیلنجز ہیں, یو فیس لاٹ آف اپوزیشن, لاٹ آف چیلنجز ان یور لائف, بٹ اسٹل یو آر فیتھفل ود آور گاڈ. کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے آپ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور پھر اتنے پکے ہو گئے کہ اب یسوع کی منادی کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسیح خداوند نے مجھے چنا اور ان کی اس پیشکش کو میں نے ایکسپٹ کیا, یہ 8 اکتوبر 1984 میری اسپرچل برتھ ڈے ہے, اور اس کے بعد جب سے مسیح کے پیچھے چلا مجھے یہ اچھی طرح پہاڑی واز کی باتیں یاد ہیں, خاص کر 5ویں باب کے شروع میں ہی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے مقلدین کو پہلے سے آگاہی بخشی کہ میرے نام کے سبب سے تم ستائے جاؤ گے, اور اگر میرے پیچھے آنا ہے نا تو کالر پر لگانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, گلے میں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے, صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو. اور میری اپنی تفسیر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے تمہارے لیے دکھ سہا, اگر تم میرے پیچھے آؤ گے تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی شاہراہ ہے. اور اگر کوئی مسیحی مومن اور ایماندار ہو کر یہ کہے کہ او جی میری زندگی چوئے ہوئے 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 خوشیاں ہی خوشیاں نے, کوئی دکھ تکلیف نہیں, تو یہ ریڈ سگنل ہے, گرین سگنل نہیں ہے. تو جب میں سوچتا ہوں کہ دکھ اور تکالیف اور مصیبتیں ہیں تو یہ ہمیں وہ چھینیاں اور ہتھوڑیاں ہیں خداوند کی طرف سے جو ہمیں تراشتی ہیں تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ہو چلیں. تو آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک تو خداوند کی میرے ساتھ وفاداری, یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ بھالوں اور نیزوں سے نہیں لڑی جا سکتی اور جیتی جا سکتی, یہ خداوند کے حضور رات کے پچھلے پہروں میں 2 زانو ہو کر جھکنے سے ہی لڑی جا سکتی اور فاتح ہوا جا سکتا ہے, ورنہ ہر میدان میں ہم شکست خوردہ ہوں گے. تو یہ کچھ معمول سا بنایا ہوا ہے, اور پھر خدا کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں, خداوند کلام کرتے ہیں اور بولتے ہیں. Many people want to know about how you receive Jesus as a savior, اور بہت سارے لوگ شاید سوشل میڈیا پہ تو آپ اپنا بھی ایک پروگرام کرتے ہیں, پھر آپ زندگی ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتے ہیں, جیسے ٹی وی کے ویورز کے لیے تھوڑا سا ایک چند منٹ کے اندر تھوڑی سی اگر آپ ہمارے ویورز کو انکریج کرنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح سے کیسے ملاقات ہوگی, ہاں انکاؤنٹر کیسے ہوا خداوند کے ساتھ, اور پھر یسوع مسیح کو کیسے فالو کرنا شروع کیا, اور آج بھی یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں, چند منٹوں میں پھر وی ول موو اہیڈ. 3 پوائنٹس میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, اور میں وہ شخص تھا جو خداوند سے بہت دور, اور میرے آباؤ اجداد سے مجھے یہی تعلیم ملی تھی, آپ کافر ہیں اور آپ شرابی ہیں, آپ بت پرست ہیں اور آپ زناکار ہیں, that's all. اور یہ میری کوئی اپنی ریسرچ نہیں تھی, میں ایسے ہی ماحول میں نے جنم پایا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں جب 7th گریڈ کو مکمل کیا, میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں پیدا ہوا, اور اس وقت ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ اب تم کیا کرو گے. میری ایک اور مقدس کتاب تھی, اس کو میں نے اچھی طرح سے پیا ہوا تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گے. میں نے کہا میں یہ جو کارپینٹر ہوتے ہیں نا, میں یہ کام کرنا چاہوں گا. او منڈیا, دنیا چانتے پہنچ گئی, تو کارپینٹر کی بات کرتا ہے. میں نے کہا جی ہاں, یہ پیسے بڑے ہوندے نے. آج پتا چلے ہے کہ یسوع کارپینٹرانوں کا دل ہی پیار کرتا ہے. یہ کام سیکھنے کے بعد وہ جن کے بابت میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میری آپ کے بابت کیا نظریات تھے جو میرے فیڈ کیا گیا تھا, ایسے ہی ایک ادارے میں مجھے جاب مل گیا. اور جب وہاں جاب ملا تو پہلے 6 مہینے
उन मसीही लोगों के और मेरे बीच में एक नादीदनी दीवार थी, तासुब की, नफरत की और कदूरत की। और उस दौरान मैं रिसर्च करता रहा कि ये बुत परस्त हैं, ये जिनाकार हैं, ये शराबी कबाबी हैं, ये हैं, ये वो हैं। लेकिन आया इन 6 महीनों के दौरान मैंने जब पूरी अच्छी तरह से उनकी जिंदगी को देखा, तो फिर मैंने महसूस किया कि असल में भरी हुई कुप्पी ते दूर दी गल है, मैनू ते किधरे खाली भी किधरे डिगी हुई नहीं लभी, नंबर 1। नंबर 2, मैं उनके इबादत गाह में, गिरजे में जाकर काम करता था, और मैंने वहां पर कोई ऐसा बुत वगैरह नहीं देखा कि मैं कहूं ये बुत परस्त हैं। नंबर 3, नौजवान लड़कियों का स्कूल था, बाय द वे कश्मीर पॉइंट पर सेंट डेनीज हाई स्कूल की मैं बात करता हूं। मैं वहां पर था एज ए कारपेंटर, और वहां पर उन नौजवान लड़कियों में, उदू मेरी भी कोई दाढ़ी मुछ नहीं सी, लेकिन मैंने कोई ऐसा इशारा नहीं देखा जिससे पता चले कि ये बदचलन और बदकिरदार लोग हैं। और रही बात यसु मसीह को खुदा के बेटा कहने की, इसके लिए तो बहुत अरसा लगा ताकि मैं जान सकूं कि वो बेटा है तो क्यों है और क्यों नहीं है। तो खैर, उन मसीही लोगों की जिंदगी जिनको अक्सर औकात कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, तो वो मसीही वो थे जिनकी बाबत मैं सोचता हूं मत्ती 5:13-14 में जैसे यीशु ने कहा, तुम जमीन के नमक हो, हालेलुया, और तुम दुनिया के नूर हो। और पौलुस कहते हैं तुम मसीह का वो खत हो जो पढ़ा जाता है, हालेलुया। तो उनकी जिंदगियां ऐसी थी जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया ताकि मैं जानूं कि मुझे क्या फीड किया जाता रहा और हकीकत क्या है। ये वो पहली चीज थी जिसमें ऐसी स्पिरिचुअल मैग्नेटिक पावर्स थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया ताकि मैं और जानूं। दूसरा पॉइंट, कुछ अरसे के बाद मेरी वालदा बीमार हो गई, उनके लंग्स में पानी पड़ गया। जहां कहीं हम घोड़े दौड़ा सकते थे दौड़ाए, लेकिन नतीजा नादारद। बिलखसूस हम सेंट्रल हॉस्पिटल रावलपिंडी में उनको एडमिट करवाया। फाइनली एक दिन जो डॉक्टर था उसने हमारी मीटिंग बुलाई, हम भाई बहनों की, वालिद साहब की भी, और उसने कहा कि जरा गौर से और दिल रख कर सोचिएगा, और वो ये है कि हम जहां तक इनका इलाज मुआवजा कर सकते थे, वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट, लेकिन अब नतीजा हमारी तरफ से 0 है। अच्छा, तो मुनासिब ये है कि इनको आप अपने घर ले जाएं और ले जाकर इनकी सेवा करें, क्योंकि वो यूं जैसे एक मेहमान है, उनके और मौत के बीच में जैसे चंद कदम का फासला है, उसके बाद काम तमाम हो जाएगा। आप इनको ले जाएं। मैं उस अदारे में काम करता था और वालदा की वजह से ये कड़वा घूंट था, पीना बड़ा मुश्किल था, कदम कदम पर आंखें अश्कबार होती थी, लेकिन बिल आखिर उनको ले जाना पड़ा। 15 दिन मैं उस अदारे से गैरहाजिर रहा, और आखिरकार मैंने कहा कहीं जाब हाथों से ना जाता रहे, मैं जाऊं तो सही। मैं गया तो वहां पर एक क्रिश्चियन टीचर थी, उसने मुझे यह कहा कि हाउ इज योर मदर। तो मैंने कहा कि वो तो दिन ब दिन नीचे और नीचे और नीचे। इवन माहिरीन तिब का ये जवाब है कि अब वो चंद दिनों की मेहमान है। और बिल आखिर उस खातून ने मुझे ये कहा कि नवीद, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं जानती हूं कि आप लोग हम मसीहों की बाबत क्या सोचते हैं। नंबर 2, मैं जानती हूं कि आपके पास एक किताब है जिस किताब में लिखा है कि मसीह इब्ने मरियम जब इस धरती पर थे तो आपने हर तरह के बीमारों को चंगाई बख्शी और कोड़ियों को पाक और साफ किया। और फिर उसने अपनी टेबल पर से किताब उठाई और उसने कहा, एक किताब हमारे पास भी है, ये कहती है कि आप अर्श से फर्श पर गुनाहगार इंसान की बिगड़ी बनाने के लिए आ गए। आपने सलीबे कलवरी पर अपनी जान दी गुनाहगार इंसान के लिए,
जब इस धरती पर थे तो आपने ना सिर्फ बीमारों को चंगा किया बल्कि मुर्दों को भी जिलाया, और नेचर पर, फितरत पर आपका इख्तियार था। लेकिन आप मर गए और मरने के बाद आप दफन हुए, लेकिन जैसे बाकी नबी और पैगंबर दफन हुए तो दफन ही रहे, मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप नबियों की नबुवतों और आपके अपने कहे के कौल के मुवाफिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो आज भी जिंदा है, और वो अपने जिंदा होने का सबूत आज भी मौजज़ात, अजीब कामों और निशानात के जरिया से करते हैं। अगर तो ये किताब तेरे पास है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये मेरे पास से ले जाकर कहीं से थोड़ा सा पढ़, कहीं से पढ़, और उसके बाद जैसे आप लोग दुआ करते हैं, आप लोग पता है ना क्या मतलब है जी, जैसे आप लोग दुआ करते हैं आप उस तरह दुआ करें, लेकिन दुआ में एक जुमला कहिएगा कि ए रब्बुल आलमीन कलिमतुल्लाह और रूह अल्लाह, मसीह इब्ने मरियम के वसीला से मेरी बीमार मां को छू कर उसको आप चंगाई बख्शिए। क्या ये हो सकता है आपके लिए? मैंने कहा इसका ले जाना तो आ बैल मुझे मार वाली बात है, लेकिन दुआ मैं करूंगा। थोड़ी देर के बाद, अब चूंकि खुदा के कलाम को किसी हद तक समझता हूं, तो वो नौमान को कहा था, साहब जी ये कोई बड़ी सारी गल करदा तो तुसी ना कर दे। मेरे जहन में आया चूंकि मेरी मां की सेहत की बात है, लिहाजा आई शुड टेक दिस रिस्क। मैंने कहा दे दे मुझे वो किताब। मैं घर गया और उसने मेरे साथ एक टाइम सेट किया, शाम 6 बजे का टाइम हमने सेट किया कि मैं घर जाऊंगा, अपनी मां के लिए दुआ करूंगा, और उसने वहां ही 2 जानू हुई और उसने कहा मैं यहां आपकी मां के लिए दुआ करूंगी। फाइनली जब मैं गया और किताब खोली और वहां लिखा था, वैसे आज भी लिखा है, कि लोग अपने बीमारों के कपड़े लाकर रसूल के बदन से लगाते और ले जाकर अपने मरीजों पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहती। इस हवाले के बाद मैंने दुआ शुरू की, खुदा का रूह उस वक्त मुझ पर और मेरी मां पर था। मेरी मां को उसकी शिफा बख्श कुव्वत छू रही थी, आंसू आंखों से बह रहे थे, और जबूर में लिखा है, हंजुआ दे नाल रो रो के जो बी हैं बीज दे, फसल वड्डन गे खुशी दे नाल गा गा के सदा। जब फाइनली मुझे लगदा सी जे मैं पैकेज खुल गया है, और वो लोग जो दुआ करना जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता है। वो वक्त आया कि जब मैंने आमीन कहा, 5 से 7 मिनट टोटल लगे, और मेरी बीमार मां जो बिस्तरे मर्ग पर थी, स्लोली 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 वो उठी, और उठकर किचन में जाकर मेरी भाभीयों और मेरी बहनों के साथ मिलकर काम करना शुरू हुआ। ये दूसरी बात थी। और आखिरी मुख्तसर सी बात, शहर लाहौर पाकिस्तान का दिल है और मेरे दिल में भी है, क्योंकि यहां से मैंने बहुत कुछ पाया है। मेरे बुजुर्गों को पता चला, जंग अखबार रावलपिंडी में जो कुछ उनका हक था उन्होंने अदा किया, और उसके बाद 1 साल तक मैं बियाबान की सेमिनरी में रहा। बहुत सारे लोग शायद इसका मतलब ना समझते हूं। इसका मतलब यह है कि 1 साल तक दुखों में और तकालीफ में रहा, और उसके बाद एक गुलबर्ग प्लाजा में जो यूसीएच के साथ है, मुझे रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर कुछ काम मिल गया, काम करना शुरू हो गया। मुख्तसर ये कि एक नौजवान आया और उसने कहा आप कौन से चर्च जाते हैं, और मैंने ऐ भी नहीं पता और रस्ता की थे ये आप तो चर्च की बात करते हैं। उसने एक सेंट मैरी चर्च का नाम मुझे बताया। मुझे क्या पता कैथलिक क्या होता है, प्रोटेस्टेंट क्या बला होती है, मुझे कुछ नहीं, मेरे लिए सारे मसीही थे। लेकिन खैर वहां पहुंचा, लेकिन मुझे मायूसी हुई क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल हेल्प नहीं हो पाई। आखिरकार एक नौजवान ने एक साहब से मुझे मुतारफ करवाया, वो कजाफी स्टेडियम की बैक साइड पे अबू बकर ब्लॉक में रहते थे, और वो आकर मेरा वो बिस्तर बोरिया, ये बड़ी लंबी बात है, ले गए, लेकिन मुख्तसर कर रहा हूं, ले गए और उन्होंने यूहन्ना की इंजील से मुझे स्टडी करवाना शुरू कर दी। जब आए ना यूहन्ना 14:6 पर, जहां लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर
कोई बाप के पास नहीं आता। और जब उन्होंने कहा तो मुझसे एक सवाल किया कि जो तुम्हारी बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के एतबार से जिस एंड पर तू खड़ा है, जे कदी आज मर जाए ते 10 मरन तो बाद जावेगा ते किथे जावेगा। मैंने कहा ये तो जी फिर अल्लाह ही जानता है, मुझे तो कोई नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं तुझे बताता हूं, 34 साल पहले जिस मकाम पर तू आज खड़ा है, मैं खड़ा था। मैं नारोवाल का रहने वाला हूं, मेरा नाम असगर अली है। 34 साल पहले। और जब मैंने इंजील को सुना तो पता चला कि खुदा एक है और उसके पास जाने के लिए राह भी एक ही है, राहें नहीं है। दरवाजा एक ही है, दरवाजे नहीं है, और वो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और नहीं है। और अगर तुम उसको पाना चाहो तो अभी तुम्हारा वक्त है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन तुम खुद। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा अपने गुनाहों का इकरार करो, फिर अपने गुनाहों से तौबा करो, फिर ईमान लाओ कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और फिर नंबर 4, दरे दिल खोलो और ईमान से कहो खुदावंद अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाइए। तो मैंने कहा अभी कर सकता हूं? उन्होंने कहा श्योर। ये था 8 अक्टूबर 1984 जब मुझे स्पिरिचुअल बर्थ का तजुर्बा हुआ। उसके बाद मेरे सवाल का जवाब बदल गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे अगर तुम मर जाओ तो कहां जाओगे, तो मैं तो कहता हूं कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। क्योंकि जो मसीह में होकर मरते हैं वो असल में नी करते हैं, वो मुर्दार नहीं होते। तो मैं मसीह में सो जाऊंगा, उसमें मैं नाउमीद नहीं हूं, मैं सो जाऊंगा। मुझे अपने गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन है। तो एक तो मसीहों की तर्ज हयात जिसने मुझे मुतासर किया, नंबर 2 जो मौजज़ा मेरी मां की जिंदगी में हुआ मसीह खुदावन ने किया, और नंबर 3 बेमंजिल था और मुझे मंजिल मिल गई। तो ये वेरी इंप्रेसिव एनकरेजिंग टेस्टिमनी है। और मैं ईमान रखता हूँ जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, यकीनन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गैर मसीही हैं। और अब तो खैर डिजिटल मीडिया पे है जैसी टीवी, और डिजिटल मीडिया पे हमारी मेजॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखती है जैसी टीवी। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है। बहुत सारे रास्ते नहीं है, बहुत सारे डोर्स नहीं है, रास्ता एक ही है, वो यीशु मसीह है। और भाई नवीद की गवाही से आपको पता चला कि यीशु मसीह को जो पकड़ लेता है, उसके दामन को जो पकड़ लेता है, उसकी डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है। वो खुदा के साथ रहना शुरू करता है, इस ज़मीन पर भी और आसमान पर अबदी ज़िंदगी के वसीला से भी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और भी जानेंगे। भाई नवीद मलिक हमारे दरमियान है और बड़ी खूबसूरत बातें हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक में एक खूबसूरत गॉस्पल सॉन्ग सुनते हैं। आप कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून विद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, और खूबसूरत गीत खुदा के खादिम से सुनते हैं। जिंदगी मिली, राह खुल गई, आसमान खुला है तेरा मेरे खुदा। जिंदगी मिली, राह खुल गई, आसमान खुला है तेरा मेरे खुदा। जाऊं मैं कहां तेरे सिवा, तू आसरा है मेरा मेरे खुदा। जिंदगी तूने दी है, हर खुशी तूने दी है, आसरा मिल गया है, रहनुमा बन गया है। जिंदगी मिली, राह खुल गई, आसमां खुला है तेरा मेरे खुदा। जाऊं मैं कहां तेरे सिवा, तू आसरा है मेरा
मेरे खुदा ओ वादों का सच्चा तू है, हिकमत का मंबा तू है, मुझको भी ऐसा तू बना। सारे गमा बदानी दा बानी गमा। वादों का सच्चा तू है, हिकमत का मंबा तू है, मुझको भी ऐसा तू बना। बन के रहूं मैं तेरा, लफ्जों से तूने घेरा, कर दिया तूने अब रिहा। बन के रहूं मैं तेरा, लफ्जों से तूने घेरा, कर दिया तूने अब रिहा। जाऊं मैं कहाँ तेरे सिवा, तू आसरा है मेरा मेरे खुदा। जिंदगी मिली राख गई, आसमान खुला है तेरा मेरे खुदा। जिंदगी तूने दी है, हर खुशी तूने दी है, आसरा मिल गया है, रहनुमा बन गया है। जिंदगी मिली राख गई, आसमान खुला है तेरा मेरे खुदा। जाऊं मैं कहाँ तेरे सिवा, तू आसरा है मेरा मेरे खुदा। प्यार मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत का दर्श दिया है तूने, सूली पे देके अपनी जान। प्यार मोहब्बत का दर्श दिया है तूने, सूली पे देके अपनी जान। दो के लहू से तूने पापों को मेरे यीशु, मुझसे है वारी अपनी जान। धो के लहू से तूने पापों को मेरे यीशु, मुझसे है वारी अपनी जान। जाऊं मैं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। तू आसरा है मेरा मेरे खुदा। जिंदगी मिली राख गई, आसमां खुला है तेरा मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। वेलकम बैक दोस्तों, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन आप देख रहे हैं और आपका अपना प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत शख्सियत
موجود ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. پورے 25 منٹ گزرے پتہ بھی نہیں چلا, اور اب اور کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آپ نے گیت سنا, برکت پائی ہے, اور اس بریک میں آپ ہمارے ساتھ رہے, خدا ان کی تعریف ہو. دوستو آگے بڑھتے اپنی گفتگو میں, آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کے خادم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بکس بھی لکھ رکھی ہیں, خاص طور پر ان بہنوں کے لیے جو کہ مسیحی کلیسیا کا حصہ ہے, ان کے لیے دور کی نظر. یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے تحفہ ہے. اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں, یا جیسی ٹی وی سے رابطہ کریں, ہمارے پاس یہ موجود ہے. ہم بھی آپ کو یہ خوبصورت تحفہ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس کے تعلق سے حضور المسیح, یہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, کتابچہ ہے, اس کو حاصل کر سکتے ہیں. روح اللہ, یہ بھی ایک خوبصورت کتابچہ ہے, اس کو حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ جو یسوع مسیح کے بارے میں, خدا کے کلام کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. ساری کتابیں جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر موجود ہیں. علم التثلیث, ٹرینٹی کے اوپر یہ بڑی خوبصورت خدا کے خادم نے یہ بک تحریر کی ہے, اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اہم سوالات اور مناسب جوابات, یہ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے, فرینڈس کے بغیر بڑی خوبصورت جو ہے وہ کتاب ہے. بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو مسیحیت پر اٹھائے جاتے ہیں, اس کے جوابات موجود ہیں. بھائی نے بڑی خوبصورت یہ بک لکھی ہے اور لکھتے جا رہے ہیں, اور بھی کام کر رہے ہیں. عہد عتیق کے حوالے سے ایک بک موجود ہے. اس کے علاوہ انگلش میں لیٹ دا نیشن ہیئر, یہ ایک بک موجود ہے جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری بکس ہمارے پاس موجود ہیں, آپ ان کو ہم سے منگوا سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعہ سے اور فون کر کے, اور ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں. ساری بکس موجود ہے. اس کے علاوہ جو ویب سائٹ دی جا رہی ہے بھائی نوید ملک کی, اس پر آپ جا کر بہت ساری جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں, خدا کے کلام کی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. ان کا یوٹیوب کا بڑا خوبصورت ایک پروگرام ہے, اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. بھائی نوید کو فالو کریں اور خدا کے کلام کو جانتے جائیں. ہماری کاوش یہی ہے کہ ہم سب مل کر یسوع مسیح کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ یسوع سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یسوع مسیح واحد حل مشکلات ہے, جو اس پوری دنیا کے لیے ایک سلوشن خداوند نے بھیجا ہے, اور اس کو قبول کرنے سے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں. اندر پیس آ جاتا ہے, اور گھرانوں میں پیس آ جاتا ہے, اور قبیلوں میں پیس آ جاتا ہے, اور خداوند برکت دینا شروع کرتا ہے. بھائی نوید بڑی خوبصورت بکس لکھی, یہ کیسے خیال آیا؟ دس از اے ٹائم ٹیکنگ جاب. یہ میں نے اب شروع کیا کیونکہ میری فرسٹ بک ابھی پبلش ہوئی ہے, اس کا نام ہے وسپر آف گاڈ, انکویسٹ, خدا کی سرگوشی. اور میں نے خدا ان سے کیسے انکاؤنٹر کیا, جیسی ٹی وی کی رویا کیسے پائی, تو اس کے اوپر ایک بک میں نے ابھی تحریر کیا دونوں زبانوں میں. تو اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ پارٹ. ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صرف چند کتب ہیں, 18 کتب ہیں جو میں نے لکھی ہیں انگلش اور اردو میں, اور وہ میری ویب سائٹ پر موجود ہیں. اور اگر ناظرین اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنا چاہیں تو www.newlifeinstitute.org ہے. اور اگر یوٹیوب پر جانا چاہیں اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ملک نوید احمد, یہ میرا فل نیم ہے, تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اصل میں مجھے نہیں فالو کیجئے گا, جس کو میں فالو کرتا ہوں اس کو فالو کیجئے گا. یہ بہت ضروری بات ہے. مطابق آپ نے جیسے آپ نے فرمایا ہے, جب میں نیا مسیح میں آیا تو میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے جو ہونے بھی چاہیے تھے. یسوع خدا کا بیٹا ہے, آپ 3 خداؤں کو مانتے ہیں, ہماری کتاب معتبر ہے, اور آپ نے تو اس اپنی والی میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا اور کیا کیا نکال دیا, اور بے شمار اور سوال تھے. اور یسوع صلیب پر نہیں مرا, اس کی جگہ کوئی اور مر گیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو شروع میں میرے لیے ایک مسیحی ہونے کے بعد بھی سائن آف کویسچن رہی ہے. ایون ہانیسٹلی میں کہوں گا, بائبل سکول 3 سال کرنے کے بعد, ایون اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے بھی BTH کرنے کے بعد, ہانیسٹلی کہوں گا کہ پھر بھی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو کیسے ہے؟
तीन खुदाओं को मानना है भी कि नहीं, तीन खुदा हैं या एक ही है? ये ऐसे अहम तरीन सवाल थे कि जो निकोदेमस के अंदर कुछ बात बयान करना नहीं चाहता था, मैं किसी के सामने जाहिर भी नहीं करना चाह रहा था कि ये क्वेश्चंस मेरे जहन में हैं। लेकिन जो जो आप जैसे मंजे हुए खुदामे मसीह की नशिस्त में बैठा और उनको कई ऐसी मीटिंग्स में बुलाया अपने घर पे, जो गैर मसीहों की मीटिंग हुआ करती थी हर फ्राइडे को, तो उसमें कई ऐसे खुदाम को बुलाया। और हकीकत तो यह है कि उनके लिए तो बुलाया ही बुलाया, लेकिन ज्यादा जरूरत मेरी थी सीखने के लिए। एक टाइम पीरियड लगा, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, और उसके बाद खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से इस भेद को मुझ पर खोला कि यीशु मसीह अगर इब्ने खुदा है तो वो कैसे है, और अगर नहीं है तो वो कैसे है। क्या मसीही लोग तीन खुदाओं को मानते हैं या एक ही खुदा है? और बाइबल मुकद्दस खुद अपनी बाबत क्या कहती है, और मेरी मुकद्दस किताब इसके बारे में जो उस वक्त थी क्या कहती है कि आया ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो काफी दौड़ धूप और काफी रिसर्च के बाद फिर मैंने जाना कि बात यूं नहीं, बात यूं है। और उसके बाद मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ, ओए जो सवाल तेरे जहन में थे, पता नहीं कितने लोग इस धरती ते ने, और खासकर हमारे मुल्क में जिनके जहन में वो सवाल है, तो क्यों नहीं तुम इस पर काम करो? तेरे जहन में तो क्लियर हो गया ना। जो मजमून तेरे अपने जहन में क्लियर नहीं है वो तू किसी के सामने खोल भी नहीं सकता, लेकिन जो क्लियर हो गया है, समझ गया है किसी हद तक, तू उस पर कलम उठा। फिर उस वक्त ये वीडियो सीडीज का यानी कंपैक्ट डिस्क का जमाना था, और उन पर नौजवान मुझे बुलाते और बाकायदा कैमरे लगाते और बाकायदा रिकॉर्ड करते, और इल्मुल कफारा, यसु खुदा का बेटा, बाइबल की मोतबर होने के ताल्लुक से, सदाकत के ताल्लुक से, और कई मज़ामीन ऐसे थे जिन पर वीडियोस रिकॉर्ड की शुरू में। और उसके बाद खुदा ने बोझ दिया तो मैंने ये कुतुब लिखना शुरू कर दी, और मेरा जो जीवन साथी है उसने मेरी काफ़ी हेल्प की कि उस दौरान उसने मुझे फोकस करने दिया इस काम पर। और वो जो बाकी काम थे, मेहमानों का आना जाना, बैठना उठना, चाय पानी जो कुछ भी होता है, वो दूसरी खिदमत में लगी रही, और मैं इस खिदमत में लगा रहा। मैं खुद लिखता, एडिटिंग के लिए किसी और को देखता था ताकि वो देखें, और उसके बाद मैं इनको मंजर आम पर लाया। बहुत खूबसूरत। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने आपको इस खिदमत के लिए चुना, क्योंकि इंसान तो चले जाते हैं, उनकी तसनीफ़ात जो हैं वो बाकी हैं। आज भी हम पढ़ सकते हैं, अगर रसूल हमें अंजील ना दे सकते तो आज हमें पता ही ना चलता कि यीशु मसीह कौन है। तो ये बुक्स जो हैं बहुत कारगर हैं, और ये ईमान रखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदामंद भी होंगी और बाबरकत भी होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, एक्सपेंशन के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो अप्रोचेस मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग खिदमत कर रहे हैं, कुछ क्रूसेड्स करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, मैसेज के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेटिक काम कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा लोग यीशु मसीह से नावाकिफ़ हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ और चर्च के ऊपर लेता हूँ, क्योंकि चर्च ने काम ही नहीं किया। चर्च ने सिर्फ क्रिश्चियंस को ही क्रिश्चियन करते गए, और चर्च ने जो है वो बाहर अपनी बाउंड्री से बाहर निकल कर काम नहीं किया। लेकिन अब चर्च को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हुई है कि नहीं, ये मुल्क हमें दिया गया है, इस मुल्क में हम पर्पसली रखे गए हैं ताकि हम इस मुल्क के लोगों को यीशु मसीह की पहचान करवा सकें। आप क्या सोचते हैं? आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से मसीहत में दाखिल हुए और अब आप खिदमत में ही हैं। इन योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू द रीच टू द अनरीच्ड पीपल हियर इन पाकिस्तान? कोई भी ऐसा तरीका जो रूहुल कुदस ने नहीं दिया और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी तरह से फ़ायदामंद नहीं होगा और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हर वो तरीका जो रूहुल कुदस की तरफ से हमें मिलता है और टारगेटेड लोगों के लिए,
उस तरीके के मुताबिक काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुनासिब और अच्छा भी होगा। मसलन कुतुब की जब बात हुई तो जब ये कुतुब गैर मसीही लोगों के हाथों में गई तो फिर उन्होंने कहा यार यूं तो मैं भी इस बात पर तो ईमान रखता हूं, तो भाई हमें और क्या चाहिए, यही तो हम कहते हैं कि ये बात है तो इस तरफ आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं जो शायद दोनों तरफ से क्रिटिसिज्म की रूह रखते हैं, तनकीदी रूह, गैर मसीहों की तरफ से भी और मसीहों की तरफ से भी। खैर ये उनकी अपनी अपनी रोया या ब्लाहट या कॉलिंग जो कुछ भी है वो है, उसके मुताबिक करते हैं। मैं शख्सी तौर पर इस बात का कायल हूं कि जितने भी हमारे बाइबल स्कूल्स और सेमिनरीज हैं वहां पर गैर कौमों में बिशारती सरगर्मियों के ताल्लुक से स्पेशल सब्जेक्ट और मजमून होना चाहिए जिसमें ऐसे ही लोगों को बुलाया जाए जिनका फील्ड यही है, Amen. ताकि वो आकर वहां पर टीच करें कि किस तरह से गैर मसीही लोगों के साथ बात की जाए इन ए वेरी रेस्पेक्टफुल मैनर, और उनके सवालात के जवाबात कैसे दिए जाएं। वैसे हर सवाल का जवाब तो हमारे पास है भी नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात के जवाबात हमारे पास ऑलरेडी हैं जो हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। नंबर 2, मैं चर्चिज को ये कहना चाहूँगा, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पर ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि आपसे बात करूं, और वो ये है कि चर्चिज में हम जो संडे की इबादत या जो भी इबादत अगर होती हैं तो जरा ट्रेडिशंस और रवायात के बुरके से बाहर निकलने की जरूरत बेशक है, बेशक, और कुछ टीचिंग साइड पर आने की जरूरत है। रेगुलर बाइबल स्टडी होनी चाहिए। एक खादम ने कहा एक राबदा बंदा खुदा का खादम अगर एक जगह पर टिक कर खिदमत करे ना तो काम कभी भी खत्म नहीं होता। ए जालम सानू दर दर लेके जाता है। तो अगर एक जगह पर रहकर काम किया जाए, बाइबल स्टडीज गैर मसीहों के लिए तैयार करना, और दुआया मीटिंग्स, खवातीन की मीटिंग, नौजवानों की मीटिंग, संडे की मीटिंग, पास्टर साहब को खुद स्पिरिचुअली इक्विप्ड होना, फास्टिंग, ये बहुत जरूरी बातें हैं जिन पर काम नहीं हो रहा और होना चाहिए। तो मैं इनकरेज करूंगा खुदा में मसीह को कि अगर वो अपनी कलीसियाओं में, जो हमारी आज की न्यू जनरेशन है वो कल की हमारी कलीसिया है, हम नहीं होंगे लेकिन वो होंगे। हम इनकी जिंदगी में क्या बो रहे हैं जब टिक टॉक का जमाना है, मीडिया कहां कहां जा रहा है, और मीडिया पर क्या क्या लानतें नहीं हैं, जहां बरकत तो है लेकिन दूसरी तरफ लानतें भी हैं, और किस तरफ लोगों का, नौजवानों का रुझान है। तो मैं सोचता हूं कि इस वक्त नौजवानों को स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है, प्लस गैर मसीही लोगों में बशारत के ताल्लुक से सिखाना बहुत जरूरी है। और मैं यहां पर यह भी एक पेशकश करना चाहूंगा, और वो ये है कि आप बहुत अच्छे खुदा में मसीह हैं, बहुत अच्छी खिदमत करते हैं, आपको सलूट। लेकिन अगर गैर मसीही लोगों में आप काम करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहे, शायद कई वजह हो सकती हैं, और शायद आपकी उस तरह की बुलाहट ना हो, नेमत ना हो, कॉलिंग ना हो, तो फिर आप जैसी टेलीविजन से रब्ता कीजिए, मर्द खुदा से रब्ता कीजिए। हम ऑनलाइन हो या कोशिश करेंगे फिजिकली, हम मिलकर अपने ऑडियंस की खिदमत करेंगे ताकि गैर मसीही लोगों में एवेंजलिज्म का काम कैसे हो। तो बादशाहत की वुसअत इसी सूरत में और हो सकती है जब ईमानदार निरा चर्च अटेंड करने वाला ना हो, निरिया इबादत ही ना करने वाला हो, बल्कि दूसरों को बताने वाला हो। किसी ने इस गैर मसीही को बताया तो ये मसीह के पास आया ना हो, और आज खुदा दुनिया में इसको यूज कर रहा है। तो क्या पता हमारे अजीजों की जो मेहनत है, पाक रूह उसको कैसे रंग भरे,
उस पिक्चर को कि Hallelujah. दुनिया भर में एवेंजलिज्म का काम हो सकता वाह है। वाह That's वाह, possible. बहुत अच्छा आपने एडवाइस किया है। और मैं देखता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर सेमिनरीज हैं, बाइबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे थियोलॉजी की तालीम तो देते ही हैं और पास्टर्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन बहुत कम मिशनरी स्कूल्स और अपोलोजेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये होना चाहिए। जब आप वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पे एक मेजर होता है एंड पे, कुछ 6 महीने का 2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें आप अपना ढूंढते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री कहाँ पे है और आप उसके ताल्लुक से फिर सीखते हैं। तो ये ज़रूरी है। और मैं सोचता हूँ जितने इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, जैसे टीवी और उनके रहनुमा देख रहे हैं, तो ये एक बड़ी खूबसूरत एडवाइस है। हमें इस मुल्क के गैर मसीहों तक पहुंचना है। वी आर चोजन। हमें यहाँ पर रखा इसलिए गया कि हम नमक की तरह और रोशनी की तरह लोगों के लिए जो है मशाल राह बन जाए और खुदा के करीब लेकर आए। एक आखिरी सवाल, ऐसा क्योंकि टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है, एक आखिरी सवाल, व्हाट डू यू थिंक आज हमारा नौजवान जो कलीसिया के अंदर है, कलीसिया से बाहर क्यों है? एक वजह तो मुझे क्लियरली नजर आती है कि हम जो खुदामे मसीह है, इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है उनको चर्च से बाहर रखने का। और फिर पेरेंट्स, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, इस गुनाह में और इस कसूर में कि नौजवान चर्च से बाहर है। हमारा क्योंकि हमने अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को और वो जो साहिब औलाद हैं उनको औलाद के कितना बड़ा ये कीमती सरमाया और खजाना है, इसकी बाबत उनको बताया ही नहीं है कि आप इनको किसी ऐसी राह पर डालें ताकि कल ये आपके लिए फायदामंद हो। हम शायद नीले पीले नोट इन्वेस्ट करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसियां लेंगे, बुढ़े वेले कम आउन गया, लेकिन अपने नौजवानों को ईमान में मजबूती के एतबार से हम कुछ नहीं कर रहे। अक्सर कलीसियाओं में, माजरत के साथ कहूंगा, नौजवानों पर अक्सरियत ऐसी कलीसियां हैं जिनमें काम नहीं है। कुछ कलीसियाओं में इक्का दुक्का है और वो पूरी कम्युनिटी को रीच नहीं कर सकते। लाजिम है कि हर कलीसिया में नौजवानों के लिए काम हो और पेरेंट्स को भी खुसूसी टीच किया जाए कि वो किस तरह से अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं। घर पे दुआ होती है या नहीं, या वो जो LCD टीवी लगा हुआ है वो घर वाले सारे बैठते हैं, इन्ने गौर नाल वेंदे ने जिवें विच वड़न लगे ने, लेकिन जो काम की बातें हैं वो शायद उस पर कम ही सोते हैं। इंडियन फिल्मों के साथ हमें नींद आती है और उठते हैं तो फिर वही शुरू हो जाते हैं। फौरन शायद हम सेल फोन का इनबॉक्स निकालेंगे कि किसका मैसेज आया है, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस को कम खोलेंगे। ये बहुत जरूरी है। पासबानों के लिए ये बहुत अहम तरीन बात है कि 2 नौजवान कलीसिया में आते हैं या 5 आते हैं या 10 आते हैं। पासबान में इस लियाकत का होना जरूरी है कि वो बच्चों के लिए बच्चा बने, नौजवानों के लिए नौजवान, बूढ़ों के लिए बूढ़ा। बाज़ औकात में पादरी बनता हूं और ओए तो संडे नो चर्च क्यों नहीं आया, ओए किथे फिरदा से पिया, ये तरीका नहीं ठीक। इससे उनके दिल टूट सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से दोस्ती का नाता उनके साथ बांधते हुए अगर उनको इनवाइट किया जाए और वहां भी भूसा उनको ना खिलाया जाए, वहां पर भी हरी घास यानी स्पिरिचुअल खुराक अच्छी उनको दी जाए, तो मैं सोचता हूं कल वो दूसरे को भी लेकर आएगा। हालेलुया। तो हम पासबान खुदा के हुजूर कसूरवार हैं और फिर हम वालदैन अपने बच्चों की स्पिरिचुअल आबियारी के बारे में कसूरवार हैं और खुदा हम पर रहम करे ताकि हमारे बच्चे अब वापस आ जाएं। और मैं यूं कहूंगा कि बहुत सारे मुसरफ हैं जो हैं तो बेटे ही लेकिन घर से बाहर हैं, उनको वापस आने की जरूरत है, जैसे आपने बजाते खुद फरमाया है। और हमें इस पर प्रोग्राम्स मुनक्कद करने की जरूरत है जो नौजवानों के मेंटल लेवल के मुताबिक हों, जिनको हम समझ सकें। उन्हें रसूलों का अकीदा और दुआए रब्बानी और मकाशफा की चीज़ों इनका कोई पता नहीं है। फिलहाल बड़ी बेसिक्स
ان کی جو نیڈز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. انٹرسٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ چوہے پھڑن لئی سانوں پتہ ہے کہ کیڑی طریقہ ہے انہوں پھڑن واسطے, پراٹھا لائیے یا کی لائیے. تو نوجوانوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے ایسی اسٹریٹجی لائے عمل اپنانا چاہیے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے. آمین, پریز دی لارڈ. بہت زبردست. خداوند آپ کو اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے, اور ہم دونوں بھائیوں کا خدمت کرنا خداوند کو پسند آئے, اور جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں اس پر بھی پاک روح کی مہر ہو. میں شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے گو کہ آپ اپنے خاندان سے ملنے کے لیے آئے, لیکن جیسی ٹی وی کو وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو وقت دیا. خداوند آپ کی خدمت کو بڑھائے اور آپ کو پوری دنیا میں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے, یہ ہماری دعا ہے. دوستو, پاسٹر نوید ملک کی گواہی سے, ان کی باتوں سے آپ نے ایک چیز ضرور جانی ہوگی کہ جس شخص کو یسوع مسیح مل جاتا ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی سوچ, اس کے خیالات, اس کا محور چینج ہو جاتا ہے. وہ یسوع مسیح کے گرد چلتا ہے, یسوع مسیح کے ساتھ اٹھتا ہے, یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھتا ہے, یسوع سے بات کرتا ہے, اور اس کے منہ سے ایک ہی چیز نکلتی ہے کہ یسوع مسیح ہی زندگی ہے اور زندگی کا سرچشمہ ہے. اس لیے اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی میں تبدیل کر دیں, اور وہ نئی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. یسوع مسیح کو قبول کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کو ہمیشہ سنبھالے رکھے گا. اپنا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے خادم کے ساتھ. دیکھتے رہیے جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن. جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن اب ڈیجیٹل میڈیا پہ موجود ہے, OTT کے ذریعے سے بھی. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, لائیو دیکھ سکتے ہیں فل HD میں. آپ اینڈرائڈ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے فون میں. ایپل ایپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں اینڈرائڈ ٹیلی ویژن ہے تو اینڈرائڈ ٹیلی ویژن کے اوپر جیسی ٹی وی کی ایپ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے جہاں پہ بھی ہوں, دنیا میں کسی جگہ پر بھی رہ کر آپ جیسی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. جیسی ٹی وی Amazon Fire پہ موجود ہے, ایپل ٹی وی پہ موجود ہے, روکو پہ موجود ہے, جیسی ٹی وی جادو ٹی وی پہ ہے, اور بہت سارے IPTVs پہ موجود ہے. اس لیے اپنی روحانی ترقی کے لیے دیکھتے رہیں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن. اپنا خیال رکھیں. پریز دی لارڈ.